टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, यू नो, कुछ 20 मिनट में बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही इजी तरीके से बता दिया। मैंने पहले भी बोला था, जब मैंने एक्चुअली नाम सुना था दम बिरयानी, आई थॉट, यू नो, इट हैज समथिंग टू डू विथ food basically, but it has nothing to do with food. It is a very very important topic, and I just feel that a lot of filmmakers today, you know, are probably not touching this, you know, because of obvious reasons. But आपने बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही 20 मिनट की फिल्म में हमको ऐसी चीज फील करवा दी जो बहुत जरूरी है। And also the you know, the motto of the film that perception is sometimes not reality. आजकल सोशल मीडिया है, आजकल बहुत सारी चीजें हैं, हमको कॉन्स्टेंट, यू नो, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आई जस्ट फील वी नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, एंड हमको हमारा खुद का भी दिमाग यूज करना चाहिए, सिर्फ चीजें कंज्यूम नहीं करते रहना चाहिए। आई थिंक दम बिरयानी इज अ सुपर हिट फिल्म सर। थैंक यू सो मच। मैं एक नाम भूल गया था, अभी है या पता नहीं, वीर धवल पाटिल। गुड वर्क. I always have believed that it is very easy to portray a story, say something when it's of longer duration, but to say something which is so sensitive in a short format is not only difficult, but that's what makes it beautiful. Being able to say something so sensitive and so important, because we as a society have become very judgmental at times, and you showed it very beautifully, and these kids have played a very important part. Yeah, all of you and there is a kid in everyone, so yeah, but you know, it came across very natural and real when of course all of you have done a great job, but when the kids come into picture, I think it gives it a different dimension altogether. So it was a very nice effort, and I would also like to take this opportunity to tell you that I would also love to be a part of your sure. Nice. Because it has been my like, I have done TV, I have done theatre, I'm entering web space. 2 of my web series will release this year, and I'm in talks for a film also, but short films are something that I haven't explored yet, and I would really love to, especially for my love for this medium of being able to say something which is socially relevant in such a short you know, format. So congratulations to the entire team. Congratulations to the team. And I hope she gets her aloo parathas again. Yeah. Thank you. Thank you so much. And all the very best for your future endeavors as well. Thank you so much. Thank you. लाउड करना है या सटल करना है? मैं बोला सच करना, जो दिखता है वही करना, कोई लाउड या सटल नहीं। जो आज दिख रहे, जो ऑडियंस रेलिवेंट हो, उससे रेलिवेंट हो, वही करना। तो वही किया है। शायद यही आपको घर पे दिखता है, यही न्यूज बार बार चलाई जाती है, वही उसी तरीके से हमने किया। Hi, you're this side. Hi, this is Astha from Awesome TV, and I would like to say that I'm speechless after seeing this. It was really nice. Thank you so much. I want to know about the behind the scenes, because I think that really matters a lot, and I want to know your experience, and if any one memory you guys can share. मेमोरीज तो बहुत है, बिकॉज एक्चुअली प्लान 3 दिन का था शूट, वो 4 दिन हो गया, वही बड़ी मेमोरी हो गई क्योंकि बजट बढ़ गया। बट बच्चों के साथ जो शूट था बस में, अभी आपने जो देखा, तो पूरी बस भरी थी। मुझे पहले किसी ने कहा गया था कि एक साइड पे ही करो, 20 बच्चे लाओ, एक साइड पे हम लोग चीट कर लेंगे। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, वो रियलिटी नहीं लगेगी। सो वी कॉल्ड 50 स्टूडेंट्स, और वो पूरी बस भरी। पर वो बस में सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें डीओपी था, बूम पर्सन था, साउंड पर्सन था, मैं खुद था। आपको शायद बस में दिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग सीट के नीचे थे। जब शॉट चालू हो जाता तो हम लोग सीट के नीचे जाते थे। बाकी का पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बट ठीक है। Aniket, this is Surya here from Bollywood Craze. Hi. My question to you is that normally I think you are not very like ज़्यादा पुराने आप नहीं हैं, आपने कुछ ही फिल्में बनाई होगी। Yes. This is my first by the way. Right? हाँ, तो उस हिसाब से कहा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, नए नए जो डायरेक्टर्स रहते हैं बहुत
आसान नहीं होता है कम समय में इतना बढ़िया मैसेज देना, और वो भी एकदम सिंपल सीधी तरह से जो दिल पे छूते हैं। तो किस तरह से आपका एक प्रोसेस था इस फिल्म को शूट करना कि सही मैसेज पहुंचे जनता तक, क्योंकि आपने आज की जो सच्चाई है उसे बहुत ही बखूबी तरह से उतारा है, शायद इसलिए लोगों को ये पसंद आ रहा है। जस्ट टेल मी द प्रोसेस कि आपने कैसे सोचा कि हाँ ये करना है तो प्रॉपर मैसेज जाएगा, बिकॉज़ इट्स वेरी शॉर्ट लिमिट टाइम। राइट, सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देना ही था, और ऊपर से शॉर्ट फिल्म थी तो वो कैसे करे और थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट फिल्म्स बहुत कभी कभी प्रीची हो जाते हैं। एंड ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत बार आपने देखा होगा ये टॉपिक, बट बहुत प्रीची वे से दिखाया था। तो मैंने इसका जॉनर जो है वो एक थ्रिलर वे से चूज किया, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको होल्ड रहे, क्योंकि ये जैसे ही टॉपिक चल रहे थे शायद कोई बंद भी कर दे। बहुत बार ऐसे होता है कि अरे हाँ ये वापस वही हुआ, तो बहुत बार रिपीटेटिव लग सकता है, बट हमने उसको एक तरीका दिया जिस तरीके से आप होल्ड रहे, एंगेज रहे एंड तक, और वो एंड पे वो मैसेज चला जाए। और वो जो हम लोग ने एंड किया है स्कूल में, बिकॉज हम लोग को शायद सभी के बचपन में एक स्कूल में हम लोग प्लेज लेते थे, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शायद हम भूल गए हैं। आफ्टर 10th शायद हम लोग ने कभी प्लेज लिया नहीं, शायद किसी को अभी वो याद भी नहीं, बट वो अभी बड़े होकर रैशनल सोच आ गई है तो सब भूल गए हैं। तो ये बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारा, और यही शायद यही आगे बढ़ाएंगे। अनिकेत, आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने टॉपिक जो उठाया है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से कन्वे भी किया और लोगों के दिल तक पहुंचेगा भी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के टाइम में कितना रिलेवेंट है इस तरह की चीजों पे बात करना, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अब जो आप तो सभी फिल्म मेकर्स हो अंदर ही अंदर, आपको पता है कैसे फिल्में चलती है, तो ये शायद 360 डिग्री होगा जो मैंने बनाया है। बट मेरा काम यही है एज अ फिल्म मेकर कि सोसाइटी को यूनाइट रखे, स्ट्रांग रखे, एक मैसेज ऐसा दे जो यूनिटी बरकरार रखे। तो उसी हिसाब से मैंने सोच के कि मेरे फिल्म में यही मैसेज जाएंगे यूनिटी के लिए, क्योंकि हमारे सिनेमा में उतनी पावर है कि हम जो दिखाते हैं वो वहां पे रेप्लिकेट होता है। तो शायद 1% भी हो तो भी बहुत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी द बिरयानी की पूरी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा एफर्ट किया है और सबको इनवाइट भी किया है, जो कि शॉर्ट फिल्म्स के केस में बहुत कम देखने को मिलता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत ऑनेस्ट एफर्ट होगा और हम सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं एक्चुअली ख़ुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट फिल्म्स करने में, और करने भी वाली हूँ। तो मैं ख़ुद भी देखना चाहती थी कि एक ऑनेस्ट एफर्ट किस तरह का होता है शॉर्ट फिल्म्स के केस में, स्पेशली यहाँ पे हम एक इतने अच्छे लेवल पर एक स्क्रीनिंग हो रही है। तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो येस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेरी 2 वेब सीरीज़ आ रही हैं इस साल, जिनके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इन कमिंग मंथ्स आपको बहुत डिटेल्स में पता चलेगा। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि टीवी से वेब में एंट्री जो है वो थोड़ा टाइम लेती है। एंड मेरी जो एंट्री हो रही है वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ हो रही है, जिसमें मेरे साथ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी इन वेब सीरीज़ एंड इन फिल्म्स ऑल्सो नाउ। थैंक यू सो मच। जी जी, सबसे पहले तो मैं ग्रीन सी एंटरटेनमेंट को आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर अनिकेत। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रेलर है, और जब मैंने उसका एक्चुअली टीज़र ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था शायद इट इज़ रिलेटेड टू फूड, क्योंकि नाम ऐसा है बिरयानी, दम बिरयानी। बट जब मैंने देखा तो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट। आई थिंक स्लीपर सेल इन्वॉल्व है कुछ, जितना मुझे समझ में आया ट्रेलर और टीज़र देख के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म नाउ। विशाल सर की एक फ़िल्म है, विशाल पांड्या सर की एक फ़िल्म है जिसका नाम है गिरगिट। मैं हूँ, श्रेयस सर है उसमें। इट्स अगेन अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म। उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है
सिटी ऑफ ड्रीम्स अभी आया है, अभी रफू चक्कर के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग. वी आर अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. तो आप आई डोंट नो कितने लोग ये जानते हैं, मैंने एक रियलिटी शो किया था इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स विद रोहित शेट्टी एंड करण जौहर. सो लॉट ऑफ पीपल यू नो मेरी तब से जर्नी देख रहे हैं, 4-5 सालों से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले एंड आई वाज वेरी हैप्पी. एक्चुअली जब हमारा ट्रेलर और टीज़र आउट हुआ था तो अमिताभ सर यू नो रीट्वीटेड द टीज़र एंड आई थिंक इंडस्ट्री से आई थिंक सब ने रीट्वीट किया था. तो आज मेरे बारे में नहीं, आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं. आई विश लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक टू दम बिरयानी and I am looking forward to watch the film. Thank you. नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है, आप दोस्त ही हो, दोस्तों के सामने क्या नर्वस होना है. और फिल्म तो बहुत ही अच्छी बनाई है. इट इज़ अबाउट सोशल हार्मनी. आप देखो फिर आपको भी पता चलेगा क्या बनाई है और आप मेरे दोस्त बताएंगे. हाँ, अगर आप स्टोरी के साथ कहानी आपको अगर कन्विंस करती है, जो हमें कन्विंस कर रही थी, तो नर्वसनेस की बात ही नहीं होती. तो वी आर वेरी कन्विंस्ड विद द फिल्म दैट इज़ मेड एंड आई थिंक इट विल मेक अ मार्क इन योर माइंड्स एंड इन योर हार्ट्स एज वेल. नहीं, अभी टाइटल के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता बिकॉज अंदर वो है, आपको उसका पता चल जाएगा कि क्यों दम बिरयानी रखा है. बट डेफिनेटली ये जब दम बिरयानी आप देखोगे तो वो उसी तरह स्वादिष्ट लगेगी आपको जैसे आप खाते हो. और एज ए डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था, शॉर्ट फिल्म में कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कहनी होती है. एज ए डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था, अगर उसके बारे में बताया, आपके प्रिपरेशन के बारे में बताया. चैलेंज तो सब में होता है, शॉर्ट फिल्म बनाओ, फीचर फिल्म बनाओ. बट आई गेस शॉर्ट फिल्म का अभी ज़माना है, लोगों को स्क्रीन टाइम बहुत अभी कम हो गया है, पेशेंस कम हो गए, तो शॉर्ट फिल्म भी अपकमिंग है. तो हम लोग ने जो इसमें कर सके वो बेस्ट किया है. और चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगी, ये पहली है, इसके बाद भी रहेगी. थैंक यू.